ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورۃ الفرقان کی ایک آیت جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے کافروں کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے، بڑا جہاد کیجئے۔ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کتاب کا سب سے بڑا معجزہ اور اس کتاب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کے سارے اسباب رکھ دیے ہیں۔ یہ کتاب ہادی ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ کتاب رہبر ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر وہ انقلابی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک حرف کے اندر ہدایت کی یہ خصوصیت اس طرح پائی جاتی ہے کہ زندگیاں بدل کے رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مکی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی مختلف طرح کی سازشوں کا سامنا تھا، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستانے، پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے ہوئے تھے۔ ہر طرح کا اسلوب آزمائے جا رہے تھے، ہر طرح کی سازش کیے جا رہے تھے، ہر طرح کی مکاری کیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تر سازشوں، تمام تر مکاریوں، تمام تر عیاریوں کا ایک ہی جواب دیا، کہا کہ وہ ہے قرآن مجید۔ کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے پیغمبر، مشرکین مکہ کی تمام تر سازشوں کا آپ کے پاس ایک ہی جواب ہے، ان کے تمام تر ہتھیاروں کا آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس قرآن کو لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے۔ قرآن مجید کا جہاد، جسے دوسرے الفاظ میں دعوت کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو جہاد کبیر قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ زندگیوں میں انقلاب لانے والا جہاد ہے، زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا جہاد ہے، اور انسانوں کو کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لانے والا جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ اور بعد کے ادوار کے واقعات پڑھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے اس کتاب کا حیرت انگیز انقلاب، اس کی یہ جو خصوصیت ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ایک ایک آیت انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، ایک ایک آیت کو سننے سے ایمان کا نور لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں ماضی کے حوالے سے
اور ज़माने हाल के हवाले से इसी सिलसिले में कुछ वाक़ियात बतौर नमूना पेश करने जा रहा हूँ। वह ऐसे वाक़ियात तो अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, लातेदाद हैं, लेकिन बतौर नमूना कुछ वाक़ियात कि इस किताब की एक एक आयत कैसी हैरत अंगेज़ तासीर अपने अंदर रखती है। तुफ़ैल बिन आमर दौसी जो कि बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, अरब में जाने माने शायर थे। मक्के के बाहर कबीले दौस से इनका ताल्लुक था। जब वो मक्के एक मरतबा मक्का आए और हालात ऐसे थे कि मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फैलते देखकर बहुत परेशान थे। कुरान मजीद का हैरत अंगेज इनकलाब, उसके दसियों नमूने, सैकड़ों नमूने वो दिन ब दिन देख रहे थे। ऐसे में जब तुफ़ैल बिन आमर दौसी मक्का आए, बैतुल्लाह की जियारत के लिए जब तुफ़ैल मक्का आए, मुशरिकीन मक्का ने उन्हें घेर लिया। घेर कर ये कहने लगे, तुफ़ैल हमारे यहाँ एक जादूगर पैदा हो गया है, हमारे यहाँ एक जादूगर पैदा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद है। उसकी बातों ने अच्छों को घायल कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी उसका जादू असर न कर जाए। इसलिए तुफ़ैल हमारी नसीहत है कि उससे होशियार रहना, उसकी बातों को न सुनना, और वो एक किताब पढ़ता है उस किताब की तिलावत को भी न सुनना। तुफ़ैल कहते हैं कि मैंने मुशरिकीन मक्का की बातों को सुनकर बैतुल्लाह में दाखिल होने से पहले अपने कानों में रोई रख ली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ कहीं ना चाहते हुए भी कानों में पड़ न जाए। कहते हैं कानों में रोई रख लिया और बैतुल्लाह में दाखिल हुआ। देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे इबादत कर रहे हैं। आपको देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, और फिर मेरे दिल ने खुद मुझे मलामत की कि मैं एक समझदार इंसान हूं, हक और बातिल में तमीज कर सकता हूं, सच और झूठ में तमीज कर सकता हूं। यह मैंने क्या किया है कि किसी की बातों को सुनकर अपने कानों में रुई रख ली। दूसरों की बातों को सुनकर खुद को बहरा कर लेना अच्छी बात नहीं, दूसरों की बातों को सुनकर खुद को अंधा कर लेना अच्छी बात नहीं। चलो सुन के देखते हैं कि आखिर ये शख्स क्या बात कहता है, इसकी दावत क्या है, इसका पैगाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह में इबादत से फारिग हुए और आप वापस अपने घर जाने लगे, तो तुफ़ैल पीछे पीछे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके कहा कि आप कौन हैं और आपकी दावत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदो जब भी आपकी बात सुनना चाहता, आप कोई लंबी चौड़ी तकरीर ना करते, आपका मामूल था आप उसे डायरेक्ट कुरान मजीद की तिलावत सुनाया करते थे, क्योंकि आपका मिशन यही था, आपका मकसद यही था। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही यतलू अलैहिम आयातिही। आपकी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी थी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाना, अल्लाह के बंदों के सामने किताब इलाही की तिलावत करना। तुफ़ैल की दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत की, कुरान मजीद पढ़ने लगे। कुरान मजीद पहली ही तिलावत को सुनकर इस कदर मुतासिर हुए और तिलावत ने तुफ़ैल के दिल पर इतना गहरा असर छोड़ा, उसी मजलिस में मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अरब के मशहूर शायर, फसाहत बलागत के आला तरीन मेयार पर फाइज थे वो खुद, और वो जानते थे इंसानी कलाम क्या होता है, इंसानी कलाम के कमालात क्या होते हैं। उन्होंने कुरान मजीद के अंदर वो हैरत अंगेज कमालात देखे जो इंसान की मकदूर और इंसानी इस्तिताअत से बिल्कुल बरतर थे। उन्हें यकीन हो गया ये किताब इलाही है, फौरन उसी वक्त मुशर्रफ इस्लाम हो गए। ऐसे दसियों वाक़ियात आपको मिलेंगे। ये जुबैर इब्न मुतइम है, मुतइम बिन आदी के फर्जंद। वो अपनी हिदायत और अपने कबूल इस्लाम का सबब बताते हुए कहते हैं कि मदनी ज़िंदगी में जबकि अभी मैं मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुआ था, ईमान नहीं लाया था, मदीना गया हुआ था कि मगरिब की नमाज का वक्त था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को नमाज पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज में आप सूरह तूर की तिलावत कर रहे थे। वो कहते हैं मैं काफिर था, मैं कुरान की तिलावत को सुन रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हो रही थी। जुबैर फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तूर की तिलावत करते हुए इस आयत पे पहुंचे
कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये लोग बगैर खालिक के पैदा हो गए हैं या इन्होंने अपने आप को पैदा कर लिया है। जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं, अल्लाह की कसम ये आयत जब मैंने सुनी, इस आयत ने मेरे दिल पे इतना गहरा असर छोड़ा कि कादा क़ल्बी यतीर, मुझे ऐसा लगा कि इस सवाल पर मेरा दिल उड़ा जा रहा है। इस आयत ने और इस सवाल ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया, मुझे सोचने और गौर करने पे आमादा कर दिया। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, ये बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए हैं या इन्होंने अपने आप को पैदा कर लिया है। मुशर्रफ इस्लाम हो गए, इस ईमान ला लिए, मुसलमान हो गए। आदे नबवी को अगर आप पढ़ते हैं दसियों सैकड़ों वाक़यात ऐसे मिलेंगे। और सुभान अल्लाह, कुरानी आयात से पैदा होने वाला यह इनकलाब इंसानी जिंदगियों में, इसका सिलसिला अहदे नबवी से लेकर पिछली 1400 साल तारीख में जारी रहा, आज भी जारी है और अल्लाह की कसम क़ियामत तक जारी रहेगा। मैं ज़माने हाल के हवाले से कुछ वाक़यात आपके सामने पेश करूं। मोहम्मद असद का नाम सारी दुनिया जानती है। बहुत बड़े अंग्रेज मुसन्निफ थे, बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर थे, मुशर्रफ इस्लाम हुए, जो डॉक्टर असद के नाम से, डॉक्टर मोहम्मद असद के नाम से इल्मी दुनिया में जाने जाते हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करके इन्होंने अपनी हिदायत, अपने इस्लाम की जानिब, इनका जो सफ़र था कुफ्र से इस्लाम की जानिब, उसको उन्होंने किताबी शक्ल में लिखा है अंग्रेजी ज़बान में। और उनकी किताब जो दुनिया के हर मुल्क में दस्तयाब है, उसका नाम है अंग्रेजी ज़बान में रोड टू मक्का। रोड टू मक्का के नाम से उन्होंने किताब लिखी, जिसका तर्जमा अरबी ज़बान में अत्तारीक़ इला मक्का के नाम से हुआ है और उर्दू ज़बान में तूफ़ान से साहिल तक के नाम से इसका तर्जुमा हुआ है। और यह किताब तकरीबन हर जगह दस्तयाब है। मोहम्मद असद ने अपने कबूल इस्लाम की दास्तान लिखी है कि मैं क्यों मुशर्रफ इस्लाम हुआ और मैं क्यों इस्लाम कबूल किया। वो लिखते हैं कि जो वाक़यात मेरी हिदायत का सबब बने, उनमें से एक वाक़या ये भी था। वो लिखते हैं कि एक मरतबे मैं यूरोप के किसी मुल्क में सफ़र कर रहा था, ट्रेन से सफ़र कर रहा था। मेरी बोगी में मेरे साथ बहुत सारे अंग्रेज़ बैठे हुए थे। मोहम्मद असद कहते हैं, मैंने सबके चेहरों को पढ़ना शुरू किया। मोहम्मद असद लिखते हैं कि सबके चेहरों को जब मैं पढ़ने लगा, हर एक चेहरे पे मुझे इज़्तिराब, बेचैनी, बेइत्मीनानी नजर आने लगी। मुझे यूं लगा कि इनमें से हर इंसान बहुत मुस्तरिब है, इसकी जिंदगी परेशान है और इसकी जिंदगी मसाइल में घिरी हुई है। मोहम्मद असद कहते हैं, मैं एक काफिर था, अभी ईमान के नूर से फैज़याब नहीं हुआ था। मैं सोचने लगा, गौर करने लगा कि आखिर ये जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, इनको आखिर किस चीज की कमी है। इन्हें हर चीज मुयस्सर है, खुशहाल जिंदगी मुयस्सर है, दौलत मुयस्सर है, औरत मुयस्सर है, बंगले मुयस्सर है, गाड़ियां मुयस्सर हैं, खुशनुमा मनाजिर सुबह शाम इनके सामने होते हैं। मोहम्मद असद कहते हैं, मैंने सबके चेहरों पे जो है बेचैनी देखी, बेइत्मीनानी देखी, हर एक की जिंदगी में मुझे इज़्तिराब नजर आया। भाइयों, चेहरों का पढ़ना भी एक फन होता है, चेहरों का पढ़ना भी एक फन होता है। खुशी का, गमी का, उदासी का बाब होता है, खुशी का, गमी का, उदासी का बाब होता है। हर एक चेहरा मुकम्मल किताब होता है। मोहम्मद असद कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि आखिर ये यूरोप के जो अंग्रेज हैं, किस चीज की कमी है इनकी जिंदगियों में, कौन सी चीज इन्हें परेशान किए हुए है, सुकून इनकी जिंदगी में मफकूद क्यों है, इत्मीनान से ये लोग महरूम क्यों हैं। हालांकि मादी एतबार से बहुत ही आला मेयार की जिंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। मोहम्मद असद कहते हैं, सफर भर मैं सोचता रहा, सफर भर मैं इस सवाल का जवाब तलाश करता रहा। सफर खत्म हो गया मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फरमाते हैं, जब सफर खत्म हुआ, मेरा सफर खत्म होके मैं अपने घर में दाखिल हुआ, तो घर में दाखिल होने पर मेरी मेज पे कुरान मजीद का एक नुस्खा खुला हुआ पाया। कुरान मजीद का मुताला उन दिनों वो कर रहे थे। वो कहते हैं, घर में दाखिल हुआ, कुरान मजीद का खुला हुआ नुस्खा मैंने रखा देखा और सबसे पहले जिस आयत पे नजर पड़ी, मुझे यूं लगा कि मुझे जिस जवाब की जुस्तजू थी और जिस जवाब की तलाश थी, गोया कुरान मजीद ने मुझे वो जवाब दे दिया है।
मोहम्मद असद कहते हैं मेरी नजर सबसे पहले उस वक्त कुरान मजीद की जिस आयत पे पड़ी वो आयत थी अल्हाकुमुत तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आए इंसानों, हिर्सो हवस ने, लालच ने, मादा परस्ती ने और दुनिया के सिलसिले में एक दूसरे से आगे बढ़ने के जज्बे ने तुम्हें आखिरत से गफलत में मुब्तला कर रखा है और ये गफलत तुम्हारी आंखों पर गफलत के ये पर्दे उस वक्त तक पड़े रहते हैं कि जब तक मौत का सामना ना हो जाए। अल्हाकुमुत तकासुर। मोहम्मद असद कहते हैं ये आयत जैसे ही मैंने पढ़ी मुझे यूं लगा कि ये आयत यूरोप के मरीजों और यूरोप के बीमारों के हकीकी मर्ज की तशखीस कर रही है और मुझे एहसास हुआ कि वाकयातन यूरोप का हकीकी मर्ज मादा परस्ती है, यूरोप का हकीकी मर्ज दुनिया की मोहब्बत है। उन्हें दुनिया खूब हासिल है लेकिन दुनिया एक ऐसी चीज है कि आदमी जिस कदर हासिल करता है दुनिया को, आखिरत से गाफिल होकर यह इंसान को उसी कदर मुस्तरिब करती है, बेचैन करती है। एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा इंसान की जिंदगी से सुकून को इस कदर खत्म कर देता है कि इंसानी जिंदगी मुस्तरिब हो जाती है, मसाइल का शिकार होकर रह जाती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लौ काना लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा। अगर इब्ने आदम को सोने से भरी हुई 2 वादियां दे दी जाएं तब भी वो उस पे बस नहीं करेगा, तीसरी वादी की तलाश और जुस्तजू में लग जाएगा। आखिरत से गाफिल होकर इंसान दुनिया कमाए, वो जिस कदर कमाता जाता है उसी कदर उसकी जिंदगी बेचैन होती जाती है, उसी कदर उसकी जिंदगी बेइत्मीनानी से दो चार होती है, उसी कदर उसकी जिंदगी में टेंशन आते हैं, सुकून गारत हो जाता है और दुनिया कमाना हकीकत में अपने सुकून को जाये करने के मानिंद होता है। मोहम्मद असद ने कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि कुरान में जिस जवाब की जुस्तजू में था कुरान मजीद की आयत, इस आयत ने मुझे वो जवाब दे दिया और यूरोप के मरीजों और यूरोप के बीमारों के हकीकी मर्ज की तशखीस कर दी कि मादा परस्ती इनका हकीकी मर्ज है। कुरान मजीद ने भी दूसरे मुकाम पे कहा यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया। सूरतुर रूम जो अहले किताब का मरकज था उसी सूरतुर रूम में अल्लाह ताला ने कहा यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये दुनियावी जिंदगी के जाहिर को जानते हैं और आखिरत से लोग गाफिल हैं। मोहम्मद असद ने लिखा है कि ये वाकया मेरी हिदायत का अहम तरीन सबब बना और मैं इन जैसे कई वाकयात का एक सिलसिला था कि जिनसे मैं मुशर्रफ इस्लाम हुआ और इस्लाम की नेमत मुझे मिली। इसी सिलसिले की एक और कड़ी, इसी सिलसिले का एक और वाकया, कुरान मजीद की आयतों से जिंदगी में जो इनकलाब पैदा होता है उसका एक और अनमोल वाकया। अल्लामा मोहम्मद रशीद रज़ा जो कि मिस्र के जाने माने आलिम गुजरे हैं, उनकी मायानाज तसनीफ है तफसीर अल-मनार। तफसीर अल-मनार में सूरह यूनुस की तफसीर के ज़िम्न में अल्लामा रशीद रज़ा रहमहुल्लाह ने एक अंग्रेज मल्लाह का वाकया जिक्र किया है जिनका नाम वो मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन जिक्र करते हैं। ये अंग्रेज मल्लाह थे, बहरी जहाज इनका इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चला करता था। समंदर में इनकी जिंदगी कई साल इनकी जिंदगी के समंदर में गुजरे थे। समंदर के हकायक, समंदर में पैदा होने वाले हालात, समंदर में पेश आने वाले हादिसात, समंदरी मनाजिर से खूब वाकिफ थे। अल्लामा रशीद रज़ा ने मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन के कबूल इस्लाम का वाकया जिक्र किया है। वो कि मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन कुरान मजीद उनके मुताले में था। उनकी नजरों से सूरह यूनुस की आयत गुजरी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबह वफरिहू बिहा जाअतहा रीहुन आसिफ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला इस आयत में इंसानों से खिताब करके कह रहा है, ऐ इंसानों याद करो उस वक्त को जबकि तुम समंदरी सफर कर रहे होते हो, कश्तियों पे सवार होकर जाते हो। वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबह, और ये कश्तियां तुम्हें समंदरों में लेकर इत्मीनान से चलने लगती हैं। माहौल और हालात साजगार रहते हैं, मौसम बिल्कुल पुरकैफ रहता है, फजा पुरकैफ रहती है, समंदर पुरसुकून रहता है और तुम बड़े इत्मीनान के साथ सफर करने लगते हो। वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन
फरिहू बिहा, और तुम जो है इस खुशनुमा मंजर पर, यह हसीन मंजर, ये पुरसुकून समंदर और समंदर की ये पुरसुकून मौजें जिन्हें तुम देखकर एक तरह से लुत्फ अंदोज होते हो, खुशी हासिल करते हो। कुरान कहता है जाअत रिहुन आसिफ, अचानक ये होता है आंधी चलती है, आंधी चलती है, आंधी चलती है, मौसम बदलता है, माहौल बदलता है, समंदर का मंजर बदलता है, ये आंधी बड़ी बड़ी मौजें उठाती हैं और तुम्हारा सफीना चारों तरफ से मौजों में घिर जाता है, और हर मौज ऐसी जानलेवा साबित होती है कि नहीं मालूम कि कौन सी मौज हलाकत खेज साबित हो। तुम्हारा सफीना चारों तरफ से मौजों की जद में घिर जाता है, तो तुम उस वक्त इस कदर बेचैन हो जाते हो, इस कदर परेशान हो जाते हो कि अपने सारे खुदाओं को भूलकर एक अल्लाह को पुकारने लगते हो। मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन, कबूल इस्लाम के बाद उनका नाम मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन पढ़ा था, वो लिखते हैं कि यह आयत जब मैंने पढ़ी तो समंदर की जो मंजर कशी की गई है, वाक़ियातन ये वही शख्स ये मंजर कशी कर सकता है जिसने समंदरी सफर बारहा किए हो और उसके सामने ये मंजर रहा हो। इसी तरह मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन की नजर से सूरह नूर की वो आयत भी गुजरी जहां अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर की पे दर पे मौजों का जिक्र किया। औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। कि काफिरों के अमाल की मिसाल देते हुए, काफिर के अकीदे की तारीकी की मिसाल देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिर के अमाल की मिसाल, काफिर के अकीदे की तारीकी की मिसाल कज़ुलुमात उन तारीकियों की सी है जो गहरे समंदर में होती हैं, जिस समंदर में एक के बाद दीगर मौजें डांपी हुई रहती हैं, पैदर पे मौजें होती हैं और ऐसी तारीकी होती है, एक तो समंदर की गहराई की तारीकी और दूसरे मौज दर मौज की तारीकी और एक तो रात की तारीकी। ऐसी तारीकी में अगर कोई मुसाफिर खुद अपना हाथ देखना चाहे उसे उसका हाथ खुद नजर नहीं आता। मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन का कहना है ये सब आयतें जब मैंने पढ़ी कुरान मजीद के मुताले के दौरान मैं समझा कि मोहम्मद ने गोया अपनी जिंदगी में बहुत सारे समंदरी असफार किए होंगे, समंदरी सफर किए होंगे और मोहम्मद के सामने ऐसे मनाजिर आए होंगे और आंखों देखे मंजर कशी मोहम्मद ने कुरान में की होगी। इसलिए कि वो कहते हैं कि नामुमकिन है कि जिस शख्स ने समंदरी सफर ना किया हो वो ऐसी मंजर कशी कर सके। वो यही समझते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदरी सफर किया होगा और आपके सामने मंजर आए होंगे और उनकी मंजर कशी आपने इन अल्फाज में की होगी। लेकिन जब वो अपने एक सफर में बॉम्बे आए तो बॉम्बे में उनके एक मुसलमान दोस्त से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने उस मुसलमान दोस्त से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, मालूम किया तो उन्हें मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी समंदरी सफर नहीं किया, कभी जिंदगी में एक मर्तबे भी हमारे नबी ने समंदरी सफर नहीं किया। अपने उस मुसलमान दोस्त की जबानी इस हकीकत को सुनने के बाद मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि अगर मोहम्मद ने जिंदगी में कभी सफर नहीं किया है और उसके बावजूद ये कुरान में ये तस्वीर कशी और ये मंजर कशी हमें मिलती है, मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह की कसम ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। नामुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे जिंदगी में कभी एक मर्तबे भी समंदरी सफर ना हुआ हो वो समंदर के इन हालात को बयान करें। वो बिन देखा हुआ शख्स, ना देखा हुआ शख्स नामुमकिन है कि इन हालात की मंजर कशी कर सके, इस मौसम की मंजर कशी कर सके। ये वाकया, ये बात उनकी हिदायत का जरिया बन गई। अल्लामा रशीद रजा ने लिखा है कि खुद मेरी मुलाकात भी मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन से है, मैं बाकायदा मिला हूं। और अल्लामा रशीद रजा लिखते हैं कि ईमान लाने के बाद समंदरी सफर के दौरान मिस्टर अब्दुल्ला ब्राउन नमाजें पढ़ते थे, इतनी इत्मीनान की नमाज और ऐसी खुशू खुजू वाली नमाज पढ़ते थे कि उनकी नमाज की हालत को देखकर हमें रश्क आया करता था। तो भाइयों, कुरान मजीद की एक एक आयत अपने अंदर ऐसे इनकलाबी तासीर रखती है। एक और शख्सियत का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, जो इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और इल्मे हदीस में दुनिया के जाने माने प्रोफेसरों में से एक हैं। डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी हिंदुस्तान में यूपी के एक ब्राह्मण घराने में इनकी विलादत हुई थी। ब्राह्मण माँ बाप को पैदा हुए थे। उन्होंने अपने कबूल इस्लाम की दास्तान लिखी है। उनका मजमून है गंगा से जमजम तक।
इस नाम से उन्होंने अपना मजमून लिखा है, गंगा से जमजम तक, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कैसे मुशर्रफ इस्लाम हुआ। वो लिखते हैं कुरान मजीद की एक आयत है जिसने मेरी दुनिया, दिल की दुनिया को बदल के रख दिया। उन्होंने लिखा है, मेरे एक मुसलमान दोस्त थे, वो एक मर्तबा मुझे मस्जिद लेकर चले गए। मैं हिंदू था, ब्राह्मण था, मस्जिद लेकर चले गए। मगरिब बाद मस्जिद में कुरान मजीद की तफसीर का दर्स हुआ करता था, और उस दिन जिस दिन मुझे मस्जिद ले जाया गया, उस दिन सूरतुल अनकबूत की एक आयत की तफसीर हो रही थी कि मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, कि जिन लोगों ने भी अल्लाह को छोड़कर और कारसाज बना लिए, अल्लाह को छोड़कर औलिया बना लिए, अल्लाह को छोड़कर बना लिए, अल्लाह को छोड़कर मखलूक को खुदा बना लिया, उनकी मिसाल उस मकड़ी की सी है जो अपना घर बनाती है, उस मकड़ी की सी है जो घर बनाती है। व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, और तमाम मखलूकात के घरों में सबसे कमजोर और सबसे बूदा घर जो है मकड़ी का घर होता है। मकड़ी के जाले की क्या हैसियत? मकड़ी का जाला न मकड़ी को मौसम की सख्तियों से बचा सकता है, न वो गर्मी से बचा सकता है, न सर्दी से बचा सकता है, और हमेशा उस पर खतरा रहता है, हमेशा सबकी नजरों के सामने रहता है। नहीं मालूम कि कब और किस वक्त वो घर फना हो जाए, गारत हो जाए। वो अल्लाह ताला ने इस आयत में शिर्क की मिसाल बयान की कि शिर्क का अकीदा भी ऐसी ही है कि शिर्क का अकीदा, मुशरिकाना अकायद इंसान को पनाह नहीं देते, इंसान को जिंदगी की मुश्किलात में सबात कदमी नहीं देते। शिर्क का अकीदा इंसान को हौसला नहीं देता, हिम्मत नहीं देता। अकीदा उसको कहते हैं जो इंसान के अंदर हौसला पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, जिंदगी की मुश्किलात के सामने उसको साबित कदम रखे। लेकिन शिर्क एक ऐसा अकीदा है कि उसकी मिसाल बैत अनकबूत की सी है, खैते अनकबूत की सी है, मकड़ी के जाले की सी है। और फिर मकड़ी के जाले की एक खुसूसियत यह भी है कि मकड़ी के जाले में कोई भी चीज जब फंस जाती है, कोई भी मक्खी हो, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब फंस जाता है, वो जिस कदर हाथ पैर मारता है उसी कदर वो फंसता जाता है। मुशरिकाना अकायद भी ऐसे ही होते हैं कि जो इन मुशरिकाना अकायद की जद में आ जाए, जो इन मुशरिकाना अकायद की गिरफ्त में आ जाए, वो खुराफात की दलदल में फंसता जाता है, वो खुराफात की दलदल में फंसता जाता है, वह अफकार और नजरियात, गलत किस्म के अफकार और नजरियात के दलदल में फंसता जाता है। डॉक्टर ज़िया रहमान आज़मी लिखते हैं कि शिर्क की जो मिसाल खैते अनकबूत से दी गई, बैते अनकबूत से दी गई, मकड़ी के जाले से दी गई। मोहम्मद ज़िया रहमान ने लिखा है, मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मेरी अपनी हालत की मंजर कशी हो रही है, मेरे अपने अकीदे की मंजर कशी इस आयत में हो रही है। इस आयत ने मेरे दिल पे इतना गहरा असर डाला कि मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। और भाइयों, आज ये जो पहले इस्लाम लाने से पहले बांकी राम के नाम से जाने जाते थे, आज दुनिया इनको डॉक्टर ज़िया रहमान आज़मी उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के नाम से जानती है। कुरान मजीद की एक आयत अल्लाह की कसम जिंदगियों में इस तरह इनकलाब बर्पा करके रख देती है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि ऐसे लोग जो कुरान को समझते नहीं, जबान को समझते नहीं, अरबी जबान से नावाकिफ हैं, इस कुरान का बहुत बड़ा मौजिज़ा है कि कुरान ऐसों को भी मुतासिर करके रख देता है। मद्रास में एक मरतबे एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, एक मुहाजिर नो मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई जो एक ज़माने में तमिल फिल्मों में अदाकारी किया करते थे, 70 साल की उम्र के हैं। मैंने उन बुजुर्ग से उनकी कबूल इस्लाम की दास्तान सुनी। वो कहने लगे कि मेरी हिदायत का जरिया कुरान मजीद बना। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि इस्लाम के दाई और मुबल्लिग जब मेरी खिदमत में पहुंचे, वो मुझे समझाते थे, मेरे सामने लंबी चौड़ी तकरीरें करते थे, लेकिन उनकी तकरीरों का मेरे दिल पे असर नहीं होता था। लेकिन जब भी वो अपनी गुफ्तगू के दौरान कुरान मजीद की आयत तिलावत करते थे तो मेरी आंखों से बेसाख्त आंसू निकल जाते थे। वो लिखते हैं, वो कहते हैं, मुझे खुद नहीं मालूम था वो क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी कुरान मजीद की आयत की तिलावत में उनकी जबानी सुनता, बेसाख्ता मेरा दिल पिघल जाता, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते, और मुझे यकीन हो गया कि इस कदर दिल को पिघला देने वाली किताब वाक़ियतन ये अल्लाह की किताब होगी, ये अल्लाह की आयतें होंगी जिन्हें समझे बगैर जिनका असर मेरे दिल पे इतना हो रहा है। इसलिए मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। भाइयों, ये कुरान हैरत अंगेज किताब है। ये चंद नमूने हैं जो माजी के हवाले से और हाल के हवाले से मैंने आपके सामने पेश किए, और क़यामत तक
یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. ہدایت اس کتاب کی اصل خصوصیت ہے, اس کی اصل خوبی ہدایت ہے, اس کا اصل کمال ہدایت ہے, اور اس سے دلوں کی دنیا بدل کے رہ جاتی ہے, اور قیامت تک نہیں معلوم کہ اور کتنے کتنے انسانوں کی زندگیاں اس قرآن کے ذریعے سے بدلیں گی, اس کی آیتوں کے ذریعے سے بدلے گی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں, غیر مسلمین کو بھی قرآن مجید سنائیں, قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کریں, اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا کریں, اس کا مختصر سا مفہوم بھی بیان کر دیا کریں. جو تلاوت ہم ان کے سامنے کر رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور یہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر غیر معمولی اثر یہ کتاب جو ہے ڈالتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو عام کریں, اس کے پیغام کو عام کریں, اس کی دعوت کو عام کریں. یہ کتاب ہدایت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کی اس آخری کتاب قرآن مجید کے پیغام کو اس کے ان پیاسے بندوں تک پہنچائیں, اس کے ان شرک میں مبتلا بھٹکے ہوئے بندوں تک پہنچائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.